السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ عشق صرف تم ناول جو کہ فائزہ احمد نے تحریر کیا ہے، اس کی پارٹ نمبر 4 ہے یہ۔ کیا؟ نادیہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر زری کو دیکھا جس نے انہیں آج صبح صاف صاف سب کچھ بتا دیا تھا۔ زری، یہ کیا بکواس کر رہی ہے تم جانتی ہو نا اپنے گھر والوں کو؟ ہاں، نادیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ مما پلیز آپ بابا کو بتا دینا۔ ذروہ کے ابھی منہ میں ہی تھے یہ الفاظ جب نادیہ کا سنسناتا ہوا تھپڑ اس کی گال کی زینت بنا تھا۔ ذروہ نے گال پر ہاتھ رکھے آنسو سے لبریز آنکھوں سے نادیہ کو دیکھا تھا۔ بس ایک لفظ اور منہ سے مت نکالنا، ایک بار تو میں اپنا گھر خود برباد کر بیٹھی ہوں، کیا چاہتی ہو اب دوسری بار تمہاری وجہ سے اچڑ جاؤں؟ زری کے لرز کر نادیہ کو دیکھا۔ اسے کہو تمہیں آزاد کر دے اس الجھے ہوئے بندھن سے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ نادیہ کے سپاٹ آواز میں وہ ساکت ہوئی تھی۔ میں نہیں کہوں گی اسے، مجھے اس سے محبت۔ بس زری، یہی پر سی لو لب اپنے، اب نہ سنوں یہ لفظ تمہارے منہ سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ صبح اور اس بندھن سے آزاد ہو کر آؤ، نادیہ غصے سے کہتی ہوئی چلی گئی، جبکہ ذروہ زمین پر گر سی گئی تھی بے حال ہو کر۔ میں نہیں کہوں گی اس سے، وہ آہستہ سے بولتی ہاتھوں میں منہ ڈھانپے روئی تھی۔ ازمان اسپاٹ سے تاثرات سے خواب سے جاگا بیٹھا تھا۔ یہ خواب کچھ اچھا نہیں تھا ذروہ کے حوالے سے۔ وہ آدھے گھنٹے میں ذروہ کی دیوار پھلانگتا نیچے تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے روم تک آیا، تبھی ذروہ واش روم سے منہ پونجے باہر آتی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ پھر آ گئے؟ ذروہ نے دھیمے سے پوچھا۔ تم پریشان ہوگی تو مجھے نیند کیسے آئے گی مائی ہارٹ، وہ کہتا ہوا اسے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ ذروہ جو کب سے کسی کندھے کی تلاش میں تھی، ازمار کا سہارا ملتے ہی وہ رو پڑی۔ ڈونٹ کرائے، وہ اس کے سر پر ہونٹ رکھتا محبت سے بولا۔ ذروہ نے اور زور سے اپنی باہوں کا احسار اس کے گرد مضبوطی سے باندھا تھا۔ تم مجھے کبھی مت چھوڑنا، ذروہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا میری جان، بس آپ ریلیکس رہیں۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ نادیہ بیگم کو دیکھ کر ازمار کے چہرے پر سرد تاثرات چھائے تھے، جبکہ ذروہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اف، یہ لڑکا جب بھی ہمارے گھر آتا ہے ناک میں دم کر دیتا ہے، ایڈیٹ کہیں کا، نوال نے زینی کے پاس بیٹھتے ہوئے جلجلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اب کیا کر دیا ہے موئز بیچارے نے؟ زینی نے نوڈلز کھاتے ہوئے اس سے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اف یار، کیا بتاؤں میں، آج کالج میں بھی اس نے میرا تماشا لگا کر رکھ دیا ہے۔ گھر میں آتا ہے تو ناک میں دم کر دیتا ہے، اور اب کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیا ہے اس لنگور نے۔ نوال سخت تنگ تھی اس سے۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ زینی نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ یار، آج کالج میں میرے سب فرینڈز کو بتا رہا تھا کہ نوال یعنی میں اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے ہاتھ تک کاٹ لیا تھا میرے لیے۔ میں اسے ترس آ گیا میری محبت پر، لیکن اب اس سے ناراض ہوں، اسی لیے اس سے اتنا بولتی نہیں۔ نوال نے اس کے منہ سے کئی باتیں زینی کو بتاتے ہوئے دانت پیسے۔ ہا اف یار، موئز بھی اپنا نام کا ایک الگ ہی انسان ہے، خوب تنگ کرتا ہے تمہیں، اسی لیے کہتی ہوں کہ کر لو اس کی محبت کو ایکسپٹ۔ زینی نے نوڈلز کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے اس سے مشورہ دیا۔ تم تو چپ ہی رہو، نوال نے منہ ناک چڑھاتے ہوئے سخت غصے سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے پلیٹ چھینی۔ بس کر دو، کتنا کھاؤ گی، کسی اور کو بھی کھا لینے دیا کرو، نوال منہ بناتے ہوئے کہتی پلیٹ لے کر بھاگ گئی تھی۔ ہاں، زینی صدمے سے اس کے پیچھے بھاگی۔ ذروہ نے پریشانی سے نادیہ کو دیکھا اور بے شرم سے سر جھکا لیا کہ اب کیا کر سکتی تھی وہ بھلا۔ نادیہ جو اس کے لیے دودھ لے کر آئی تھی، حیرت سے دونوں کو دیکھتی پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔ تم یہاں ذروہ کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے؟ نادیہ نے دودھ کا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے ازمار سے سخت غصے سے کہا۔ دروازہ بند کر چکی تھی۔ کیسی شرم، اپنی بیوی کے کمرے میں آنے کی کیسی شرم، مائی ڈیئر ساسو ماں؟ ہاں، ازمار نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ تم ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ نادیہ نے اسے سخت چتونے سے گھورا تھا۔ نہیں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، دیٹس اٹ، ازمار نے سرد مسکراہٹ سے کہا جو نادیہ کو آگ لگا گیا تھا۔ ذروہ نے بھی سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ، تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ نادیہ نے انتہائی غصے سے اسے پاس پرس کی تھی۔ ازمار پھر مسکرایا۔ تو ڈیئر ساسو ماں، میں نے آپ سے جو بدتمیزی کی ہے بتا دیں،
تاکہ مجھے تو پتہ لگے میں نے کیا گستاخی کی اپنی ساس کی شان میں. میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا. دیٹس اٹ. کیوں ضروا؟ ازمار نے سرد مگر مسکراتے ہوئے لہجے میں شانے اچکائے تھے. ضروا اس سے کہو ابھی کے ابھی یہاں سے چلا جائے ورنہ میں ادریس صاحب کو بلا لاؤں گی. نادیہ نے سخت تیش سے ضروا کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا. آپ کو کیا لگتا ہے میں آج ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ میں آج ملنے ہی آیا اپنے ان لاز سے تھا. پلیز آپ انہیں بلا لیں تاکہ بیٹھ کر کچھ فائنل بات چیت ہو سکے. ازمار نے ضروا کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اپنے مقصود ڈیٹ پن سے کہا. ضروا نے کچھ نہیں کہا. شاید وہ بھی تھک گئی تھی. اس سچائی کو دباتے دباتے وہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی سخت پریشانی دکھ رہی تھی جو ازمار کو ہرگز گوارا نہیں تھا. آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مائی ہارٹ؟ میں اپنی زندگی میں آپ کو پریشان ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا مسز. ازمار نے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے دھیمے سے کہا. ضروا نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنا نجات دہندہ کو دیکھا. تم جا کیوں نہیں رہے ڈھیٹ انسان؟ نادیہ نے اب کی دفعہ ضروا کو پیچھے کرتے ہوئے دروازے کا راہ دکھاتے ہوئے درستگی سے کہا. کیوں ہمارا تماشا بنانے پر تلے ہوئے؟ نادیہ نے اب جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا تھا. آپ بھی کچھ خدا کا خوف کریں. ایک نکاح شدہ لڑکی کو نکاح کرنے چلی ہیں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے. ازمار کے سخت لہجے پر وہ بنبنائی تھی. میں تمہیں اس سے الگ کر کے اس کا نکاح کرواؤں گی ملک منصور سے. تم جیسے قاتل سے تو میں اپنی بیٹی بیانے سے رہی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا سمجھے تم. اب جاؤ ادھر سے. شرافت سے وہاں ہی چلے جاؤ تو بہتر ہے. نادیہ نے غصے سے دھیمی آواز میں کہا. ضروا نے اب کی دفعہ سنجیدگی سے نادیہ کو دیکھا. مما پلیز آپ کبھی تو میری مرضی کا فیصلہ کر دیں. کبھی تو اپنی چھوٹی بیٹی پر توجہ دیں کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں. آپ نے مجھے ڈاکٹر نہیں بننے دیا. آپ نے مجھے آرٹ نہیں سیکھنے دیا. میں چپ رہی. آپ نے کہا یہ کالج بیسٹ ہے. میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا یہ پہنو یہ کھاؤ یہ نہ کرو یہ کرو. میں کرتی رہی. میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی. ماما آپ کے 2 بچے نہیں ہیں آپ کے 3 بچے ہیں. پلیز ماما مجھے بھی یاد رکھا کریں کہ میں انسان ہوں کوئی ڈمی نہیں جو صرف سب کے اشاروں پر اپنی زندگی ناچتی رہوں. ضروا جب بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی گئی. وہ روتے ہوئے آج نادیہ بیگم کو ان کی غفلت یاد کروا رہی تھی. نادیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ضروا کو دیکھا جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی. ازمار کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی ضب سے. ساسو ماں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میری بیوی کو رلانے والا تو قسم کھاتا ہوں اب تک وہ زمین کے اندر ہوتا نہ کہ باہر. میری بیوی کو پریشان کرنا چھوڑ دے. میں چاہوں تو ابھی اسے ساتھ لے جاؤ کوئی روک نہیں سکتا. لیکن مجھے آپ کی اور ضروا کی عزت کے لیے چپ ہوں ورنہ کون ہے جو مجھے روک سکے ضروا کو لے جانے سے. اس نے لرزتی ہوئی ضروا کو خود میں بھینچتے ہوئے سرد لہجے میں نادیہ سے کہا. خیال رکھیے گا ان کا. چلتا ہوں. ازمار کہتا ہوا بنا ضروا کو دیکھے اپنے مخصوص چال سے چلتا دروازہ پار کر گیا تھا. نادیہ نے آنسو لیے آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کے ساتھ واقعی وہ بہت زیادتی کر گئی تھی. ضروا بھاگتی ان کے سینے سے لگی. ماما مجھے معاف کر دے. میں نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ باتیں منہ سے نکل گئی. مجھے معاف کر دے. لیکن ماما میں اس انسان پر صبر نہیں کر سکتی. ماما روح میں سما گیا ہے وہ میرے لیے. اس سے دور ہو کر زندہ رہنا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی. ماما کچھ کرے بنا دے مجھے اس انسان کو. ماما نہیں رہ سکتی میں. کیا کروں؟ کتنی بار کوشش کر چکی ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوئی. ماما نہیں ہو پائی. وہ ان کے سینے پر سر رکھے بڑبڑاتی تھی. بہت کچھ باور کروا چکی تھی. نادیہ نے آنسو صاف کر کے اس کے ننگے سر پر ہونٹ رکھ کر وہ اپنی بیٹی کو بکھرا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی. کھانا کھاؤ گی؟ یہاں کا کھانا تو بیسٹ ہے. میں جب بھی یہاں آتا ہوں یہیں سے کھانا کھا کر جاتا ہوں. ہارون نے ذلے سے کہا جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی. بھوک تو بہت لگی ہے مجھے. کہیں سے بھی کھلاؤ تو کھا لوں گی. بس بھوک مٹ جائے میری. ذلے نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ بسوڑا. ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. وہ بہت پیاری سی شکل سے اسے دیکھتی اپنا دیوانہ بنا رہی تھی. ہارون نے ہلکی سی مسکان سے گاڑی پارکنگ میں پارک کی تھی. وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے کھانے سے بھرپور انصاف کر رہے تھے جب تھوڑی دور اسے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا چودھری منیم غصے اور ناگواری سے ہونٹ بھینچے دونوں کو آپس میں ہنستے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا. اس کے رشتے سے انکار کر کے اچھا نہیں کیا تھا ذوالفقار نے. منیب نے جوس پیتے ہوئے سوچا یہ لڑکی صرف میری ہے. ہارون احمد چودھری منیب نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر غصے سے بڑبڑایا. اب تو پیٹ فل ہے نا؟ ہارون نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا. ہاں اب تو فل ہے. شکر ہے سکون ملا ورنہ بھوک کے مارے تو مجھے
مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ضلع نے ہونٹ لٹکا کر اپنی کنڈیشن بیان کی۔ ہارون کی آنکھوں میں بہت نرم تاثر تھا اس کے لیے۔ ضلع چائے پیتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب 3-4 ٹیبل چھوڑ کر بیٹھے منیب پر اس کی نظر پڑی۔ ہارون، یہ وہی ہے نا جن کے گھر ہم رات رکے تھے؟ ضلع نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے ہارون سے تصدیق چاہی۔ ہارون نے چونک کر اس کی نظروں کا تعاقب کیا، پھر اس کی کانوں میں آواز گونجی، بیٹا چودھری ارشد اپنے بیٹے منیب کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ ہارون نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے چودھری منیب کو دیکھا جو ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی پر رکھے ضلع کو دیکھتا ہارون کا خون جلا گیا تھا۔ ہارون ایک دم اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ضلع کو حیران پریشان چھوڑے چودھری منیب کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ منیب بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم میری بیوی پر نظر رکھو اور اس کے لیے رشتہ بھیجو، تمہاری یہ جرأت بے غیرت انسان، تمہیں شرم نہیں آتی کسی شادی شدہ لڑکی پر نظر رکھتے ہوئے؟ ہارون نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے سخت تیز سے پوچھا تھا۔ ضلع بھی اس کے قریب آ چکی تھی۔ ہارون کی بات سن کر وہ رکی تھی۔ چودھری منیب طنزیہ مسکرایا تھا۔ اس کے آدمیوں نے ہارون کو گھیرا تھا۔ ہارون صاحب، جو لڑکی منیب کو پسند آ جائے وہ صرف چودھری منیب کی ہی ہوتی ہے، سمجھے تم؟ اور جہاں تک ہے شادی کا سوال، تو شادی کہاں ہوئی ہے؟ بس نکاح ہوا ہے جو ٹوٹ سکتا ہے۔ ہارون نے اسے مارنے کے لیے مکم تانا ہی تھا جب ضلع نے آگے بڑھ کر اس کی کال پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ چودھری منیب سمیت سب لوگوں نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو سخت غصے میں تھی۔ ہارون نے مسکرا کر اپنی شیرنی کو دیکھا اور پھر منیب کو جو مسکرایا تھا۔ زلیخا بی بی، آپ جان سے بھی مار دیں تو اس دل کو زلیخا بی بی، آپ جان سے بھی مار دیں تو اس دل کو کوئی غم نہیں ہوگا، منیب نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اس بار ہارون کے برداشت سے دور بات تھی۔ ہارون نے اس کا سر پکڑ کر زور سے پاس ہی موجود درخت پر مارا۔ منیب نے بھی تیز سے اسے زور سے دھکا مارا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ منیب کے آدمی بھی ہارون پر پل پڑے تھے۔ ہارون پھر بھی اسے اچھا خاصا پیٹ چکا تھا۔ ضلع پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ اب آس پاس بیٹھے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ ہارون ابھی بھی قابو میں نہیں تھا۔ کہاں وہ دونوں بھائی ماہر فائٹر اور کہاں وہ منیب صرف پیسے کے دم پر ہی شیر بنتا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے شادی کرنے والے؟ ہاں، تم جیسے کو تو میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، ضلع نے اس کلین شیو والے کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ منیب ایک خوش شکل نوجوان تھا جو ہر برے کام میں ملوث تھا۔ ضلع کی بات پر وہ صرف مسکرایا تھا۔ چلو ہارون، ہم ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، ضلع نے ہارون کو اس کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہتے ہوئے کھینچا۔ وہ ہارون کو زبردستی کھینچ کر لے گئی تھی۔ اس کا کیا کرنا ہے چودھری جی؟ اس کے ایک خادم نے پوچھا۔ اس کا جو کرنا ہوگا وہ میں کروں گا، اس نے چودھری منیب سے پنگا لیا ہے، میں اسے سستے میں نہیں چھوڑوں گا، چودھری منیب نے ناک سے بہتے خون کو انگلی پر لیتے ہوئے تیش سے کہا۔ پیر شاہ جی آپ؟ احمد صاحب نے انہیں اتنے سالوں بعد اپنے گھر میں دیکھ کر حیرت اور عاجزی سے کہا تھا۔ پیر شاہ جی مسکرائے۔ وہ ایک نورانی شکل والے سفید داڑھی والے بزرگ تھے جس کی عمر قریباً 70 سال کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ ان کے چہرے سے ہی نورانیت جھلکتی تھی، ماتھے پر محراب کے نشان تھے۔ آئے نا پیر شاہ جی، ہم کہاں بٹھائیں آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ احمد صاحب نے نہایت عاجزی اور احترام سے نظریں چکاتے ہوئے کہا۔ ہم کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، پہلے ہمیں ہمارے پیارے کا دیدار تو کروائیں۔ احمد صاحب ان کی بات پر پریشان ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب گھر والے بھی ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اب سب عقیدت مندی سے انہیں دیکھتے پریشان سے تھے۔ وہ انہیں ان کے سوال کا کیا جواب دیتے جو وہ پوچھیں گے؟ تم یہاں؟ پروفیسر جو چھٹی کے بعد اپنے آفس میں تھے اسے روم میں آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ آف کورس میرے پیارے پروفیسر جی، سوچا آپ سے کچھ حال احوال پوچھ لوں، ازمار نے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے لیکن سرد لہجے میں کہا۔ دیکھو ازمار، اس روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کچھ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروفیسر نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوف، آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کا ناک منہ توڑنے میں تھوڑی آیا ہوں۔ آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کا ناک منہ تھوڑی نہ میں توڑوں گا، بلکہ ازمار نے انگلی پر پسٹل گھماتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی جو پروفیسر کے چھکے چھڑا گئی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو ازمار، میں نے جو کیا وہ کالج کے مستقبل کے لیے کیا، میں نے کوئی رشوت نہیں لی ملک منصور سے۔ واہ واہ، نام تو آپ کو بھولا نہیں، کسی فر نام لیا ملک منصور کا؟ ازمار نے سر سے مسکان سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پروفیسر بوکھلا کر رہ گیا۔ اوکے، تم کل سے یونیورسٹی آ سکتے ہو، لیکن نو فائٹ، تمہاری شکایت نہیں آنی چاہیے، پروفیسر نے رومال سے پسینہ صاف کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔
उफ काश आप मुझे आज से 2 महीने पहले निकाल देते तो शायद मैं खुश होता। लेकिन अब मसला ये है कि मेरी बीवी है यहाँ। और दूसरा जो आपने कहा कि नो फाइट तो सॉरी, ये बात आपकी नहीं मान सकता। अजमान ने नाक चढ़ाया था। मानते नाक चढ़ाकर कहा, मानते पता नहीं कौन सी हो तुम। प्रोफेसर ने दांत पीसते हुए सोचा। वो एक डरपोक से इंसान थे जो अजमार की पिस्टल दिखाने पर बहुत बार इसकी जायज़ व नाजायज़ मान चुके थे। चलता हूँ डियर, अपना ख्याल रखिएगा, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है। अजमार संजीदगी से कहता हुआ उठ गया। पीछे प्रोफेसर दांत पीसता परेशान सा बैठा था। जरवा आज यूनी नहीं आई थी, अजमार को एनी ने बताया था। अजमार प्रोफेसर से मिलकर जा चुका था। वो जरवा के लाउंज में बैठा था। दादी कब से इसको घूर रही थी, जो टांग पर टांग रखे अकड़ू से स्टाइल में बैठा इर्द गिर्द देख रहा था। बेटा क्या शादी हो गई है तुम्हारी? फरजाना बेगम ने थोड़ी पर उंगली रखते हुए सोने से मुंडे से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 माह से शादीशुदा हूँ, अजमान ने लापरवाही से कहा। दादी ने मुंह बसोड़ा। वो तो थोड़ी ही देर में इसे अपनी पोती के लिए सोच चुकी थी। जरवा से क्या काम है? दादी ने इससे खिंचते हुए अंदाज में पूछा। वो मुस्कुराया था। जुल्फकार चाचू ने इनके लिए मेडिसिन भेजी हैं, अजमार ने इसे सामने से आते देखकर कहा और फिर खड़ा हो गया। वो सादे से ग्रीन सूट में उलझे बालों और सूजी आंखों से इसे गहरे गम में मुब्तला कर गई थी। जरवा ने परेशानी से इसे देखा, जो रफ से वाइट शर्ट जिसके बाजू हाफ स्लीव्स थे, नीचे तंग जीन्स पहने, अपने ब्राउन बिखरे बालों से इसके दिल में घुसा था। वो जब जब इसे देखती थी तब वो इस दिल में घुसता था। जरवा, ये लो, चाचू ने आपके लिए मेडिसिन भेजी है, अजमार ने इसके करीब आते हुए वाइट लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ग्रीन आंखें में अब सिर्फ जरवा ही जरवा थी। वो इसे हर हाल में दुनिया की खूबसूरत लड़की लगती थी जिससे आपको प्यार हो। वो आपके सारे जहां से प्यारा लगता है तो जरवा तो फिर इसका इश्क थी। और चाचू ने कहा है कि आपको साथ लेकर आऊं और आपका तफसीली चेकअप करना चाहते हैं। वो बस इसे देखने आया था, लेकिन अब इसे परेशान देखकर वो अपना इरादा बदल चुका था। वो अब इसे अपने फ्लैट लेकर जाना चाहता था। अरे ये नहीं जा सकती, आज इसके ससुराल वालों ने आना है, फरजाना ने जल्दी से मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तो फिर मैं भी यहीं रुकता हूँ, इनसे मिलकर ही जाऊंगा, अजमार ने वापस सोफे पर बैठते हुए अटल लहजे में कहा। जरवा ने परेशानी और हैरत से इसे देखा, जो दादी की तरफ देख रहा था, जो खुद भी हैरत से नौजवान को देख रही थी कि अजीब लड़का है। दादी ने पान मुंह में रखते हुए दिल में सोचा। जरवा ने इसे आंखों से जाने का इशारा किया, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो सामने से आते इदरीस साहब की तरफ मुतवज्जा था। ये रहा तुम्हारा रूम, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर कहीं वॉक पर चलते हैं। हारून ने इसे होटल के रूम की कीज देते हुए कहा। जिले की नजरें इसके चेहरे पर थी, जहाँ हल्की हल्की चोटों के और मामूली सी खराशों के निशान थे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देखा जा रहा है मुझ मासूम को? हारून ने आईब्रो उचकाते हुए मुस्कुराती आंखों से पूछा था। जी नहीं, मैं कोई तुम्हें नहीं देख रही, मैं तो सामने देख रही हूँ, जिले झेंप कर कहती हुई जल्दी से रूम में चली गई। पीछे हारून सर हिलाता मुस्कुराता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ा था। कैसे हो तुम अजमार साहब? इदरीस साहब ने इसे देखते हुए तंजिया लहजे में पूछा। अल्लाह का शुक्र है इदरीस साहब, आप सुनाएं? अजमार ने भी तंजिया लहजे में जवाब दिया। हम पर भी अल्लाह की रहमत है। तुम्हें आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? इदरीस साहब ने सामने वाले सोफे पर बैठे हुए तमस्कुराना लबो लहजे में इससे पूछा। वो मुस्कुराया। मैंने सोचा अपनी चच्ची और इनकी बेटी से मिलाऊं और जरवा के होने वाले ससुराल से भी मिल लूं। क्या पता वो कैसे लोग हैं जो आपने हमारी जरवा के लिए पसंद किए हैं, अजमार ने भौंमियां इकट्ठी करते हुए सर्द लहजे में कहा। इदरीस साहब ने इसलिए बदले आवाज को घूरा। तुम कौन होते हो? जरवा हमारी बेटी है। तुम कौन होते हो? जरवा हमारी बेटी है तो यकीनन फैसला भी हम ही करेंगे, इसके लिए और बेहतर ही करेंगे। इदरीस साहब ने जरवा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए तीखेपन से कहा। जरवा ने इसे नजरों से खामोश रहने की इल्तिजा की। अजमान मुस्कुराया। वो अभी कुछ कहने ही वाला था जब इसका फोन रिंग हुआ था। चाचू कॉलिंग, अजमान ने कहते ही कॉल पिक की। क्या? अजमान सुनता ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। जरवा ने हैरत से इसे देखा, जिसके चेहरे के सपाट से नकुश अब बिल्कुल नॉर्मल थे। चेहरे पर एक रोशनी सी फूट पड़ी थी। आई एम कमिंग, इसने कहते ही फोन बंद करके जरवा को देखा, जो इसे ही परेशानी से देख रही थी कि आखिर क्या बात है जो वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। जरवा, आप मेरे साथ चलोगी घर? अजमार ने इससे आस से पूछा। जरवा ने परेशानी से इसे देखकर इदरीस साहब और फरजाना बेगम को देखा, जो गुस्से से अजमार को देख रहे थे। वो बोला, तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है, इसके ससुराल वाले आते ही होंगे, फरजाना बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। जरवा का जर चेहरा मुरझा गया था। जरवा, आप चेंज करके आ जाओ, आपकी
इरम मम्मा की तबीयत खराब है, अजमान ने पॉकेट में हाथ डालते हुए लापरवाही से कहा। जरवा परेशान हुई। जाओ जरवा बेटा, आपको जाना चाहिए, नादिया ने चाय लेकर आते हुए कहा। अजमान मुस्कुराया था। अरे ये कैसे जा सकती, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम कह रही हो जाओ जरवा बेटा, हद हो गई है। एक तो हम तुम्हारी आम सी शक्ल की बेटी का ब्याह कर रहे हैं, ऊपर से तुम्हारी बेटी के नखरे ही खत्म नहीं होते। वाह 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 बेला, वाह 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 भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। फरजाना बेगम ने नाक मुंह चढ़ाते हुए तंग कर नादिया से कहा। वो अगर अजमार के सर तासरात देख लेती तो चुप हो जाती। मैं नहीं जाऊंगी अजमार, मैं कल मिल लूंगी इनसे, जरवा ने मजबूत लहजे में कहती हुई ऊपर चली गई। बिना इसके तासरात देखे वो अपनी जगह से घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अजमान ने होंठ भींचकर फरजाना बेगम को देखा। दादी जी, लोगों को बाहर से देखना छोड़ दें, इनके अंदर की खूबसूरती पहचाने। आइंदा अगर आपने जरवा के साथ कोई ज्यादती की तो इसका अंजाम आप सबको भुगतना होगा। आई डू नॉट लाइक द रिस्पेक्ट द सेकेंड टाइम। उस हर नज़रों से सबको कहता हुआ बाहर की तरफ तेज कदमों से चला गया था। पीछे इदरीस साहब और फरजाना बेगम को हैरत में डाले। जरवा कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई दरवाजे से टेक लगाए वो होंठों पर उंगलियां रखे बेआवाज आंसू से रो रही थी। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? उफ, वो नाराज़ हो गया होगा मुझसे, जरवा ने परेशानी और दुख से सोचा। मैं जल्दी से खिड़की में आई, जहाँ से वो अपनी बाइक स्टार्ट करता इसे दिखाई दिया था। धूप में चमकता रोशन चेहरा सिर्फ इसका ही था। अजमान ने ऊपर देखा, जहाँ वो ग्रिल पकड़े इसे बेबसी से देख रही थी। अजमान ने जवाबन इसे संजीदगी से देखकर बाइक को हवा में छोड़ता इसकी नज़रों से दूर हो चुका था। जरवा का दिल धक से रह गया था। वो इसे गुस्से से देख कर गया था। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं? वो तो नाराज़ हो गए हैं मुझसे, जरवा ने नाखून चबाते हुए बेचैनी से सोचा। सामने बेड पर इसका ब्लू ड्रेस पड़ा था जो इसने आज पहनना था। जरवा बेड पर बैठ गई थी। सर में दर्द की ठेस सी उठने लगी थी। आप यहाँ बैठिए पीर शाह जी, अदील साहब ने अंदर से नई चेयर लाते हुए पीर शाह साहब से कहा। पहले मेरे प्यारे को बुलाएं, इसके बाद ही हम बैठेंगे, इन्होंने बहुत नरम से लहजे में अदील साहब को देखते हुए कहा, जिससे सब घर वालों के चेहरे पर परेशानी से छा गई थी। वो आ जाता है, पहले आप बैठे तो। अहमद साहब ने सर झुकाते ही एहतराम से कहा। अदील, तुम संभाल क्यों नहीं सके हमारे प्यारे को? क्या इसलिए हमने तुम्हें इसे जिम्मेदारी सौंपी थी? पीर साहब का लहजे में तो नरमी ही थी, क्योंकि वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पीर जी, दरअसल बात यह है, हम जानते हैं अदील, तुमने इसे घर से निकाल दिया है। अदील जो अभी अभी कुछ कहने ही लगा था, पीर शाह साहब ने इसे बीच में टोक दिया। इन सब के लहजे में बहुत संजीदगी सी महसूस की थी जा सकती। पीर शाह जी, आप बैठिए तो, दादी ने परेशानी से इन्हें देखते हुए कहा। मेरे प्यारे को निकाल दिया आप लोगों ने, तो क्या आप लोगों को लगता है मैं यहाँ बैठूंगा? पीर शाह साहब ने संजीदगी और नरम लहजे में कहा। मैं इसे फ़ोन करता हूँ। जुल्फ़कार साहब ने जल्दी से मोबाइल निकालते हुए कहा और एक साइड पर हो गए। औरतें सब सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े नजरें झुकाए खड़ी थी। पीर शाह जी सामने लगी पेंटिंग को देख रहे थे, जिस पर अल्लाह और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था। इन्होंने एक बार बैठने से इनकार कर दिया था तो फिर इन्होंने कभी भी नहीं बैठना था। अगर देखा जाता तो अजमार जिद पर इन्हीं पर ही तो गया था। आधे घंटे में ही वो घर के दरवाजे के पास था, जो ये कह कर गया था कि वो इस घर पर कभी कदम नहीं रखेगा। लेकिन अब वो दरवाजे में खड़ा इन्हें देखता भाग कर इनके सीने से लगा था। पीर शाह जी के होंठों पर अब बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो कई सालों तक कई गुमनाम गोशों में अल्लाह की इबादत किया करते थे। वो अब भी ना आते अगर इन्होंने अजमार को ख्वाब में ना देखा होता कि अजमार ही तो था जो अल्लाह और रसूल के बाद इनका सब कुछ था। वो दोनों हाथों में ब्लैक कॉफ़ी की प्लास्टिक के कप पकड़े चलते जा रहे थे। इर्द गिर्द खूबसूरत जगह से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस तरह की कॉफ़ी अजी को पसंद है, ब्लैक कड़वी। हारून ने मुस्कुराते हुए इसका जिक्र किया था। हाँ, इसी की तरह कड़वी जो है, ज़िले ने शरारती मुस्कान से कहा। मेरा भाई बहुत स्वीट है, बस ऊपर ऊपर से सख्त लगता है, अंदर से बहुत हसास है। हारून के लहजे में इसके लिए मखसूस प्यार था, जो ज़िले महसूस करके मुस्कुराई। कभी कभी हैरान होती है तुम्हारी इसके लिए मोहब्बत देखकर, ज़िले ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। तो मेरे लिए इसकी मोहब्बत देखकर भी हैरान हो गई। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे जब एक ब्लैक गाड़ी इनके सामने आ रुकी। जिले और हारून को बिना संभलने का मौका दिए जिले को गाड़ी में खींचना चाहा था इन लोगों ने। जिले आधी गाड़ी में चली भी गई थी जब हारून ने फुर्ती से इसकी कलाई पकड़कर इसे अंदर जाने से रोका था। चार लोग थे। सड़क इस वक्त वीरान थी। 2
आकर पीछे से हारून को काबू करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जिले की कलाई छोड़ दे, और एक अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जिले भी भरपूर मजामत करती अपना हाथ छुड़वाने लगी। हारून ने खींच कर अपने भारी बूट वाला पाँव इस आदमी के पेट पर मारा था और पीछे से गर्दन पकड़े आदमी को नाक पर जोर से कोहनी मारी थी। वो बुलबुलाता हुआ पीछे हटा था। हारून ने फुर्ती से पॉकेट से छोटा सा पिस्टल निकालकर 2 की टांगों पर फायर कर दिया था, जिसे वो चीखते हुए गाड़ी में बैठकर फरार हो गए थे। वो भी जो अभी फायर करते, लेकिन पुलिस की गाड़ी को देखकर वो जल्दी से वहां से निकल गए थे। जिले तुम ठीक हो? हारून ने इसे अपनी बाहों में लेते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा। जिले ने इसके सर सीने पर सर रखते हुए हाँ में सर हिलाया। अलबत्ता आंखों में बहुत से आंसू तैर रहे थे जिन्हें वो बहुत मुश्किल से रोके हुए थी। वो डर गई थी तो वो भी एक लड़की ही ना। जरवा ब्लू सूट पहने बिल्कुल तैयार थी। इसे जबरदस्ती इदरीस साहब के भाई की बेटी नाइमा ने तैयार किया था। जरवा को सख्त बुखार था, लेकिन फिर भी वो लब सीए सबके दरमियान बैठी हुई थी। मलक मंसूर अकड़ कर बैठा जरवा को देख रहा था, जो ब्लू नारंगी फ्रॉक में पहने, बालों की लंबी सी चोटी आगे डाले, कानों में छोटे छोटे टोकरी वाले झुमके पहने चुप सी बैठी थी। सफेद हीरे की नथ भी आज कुछ उदास सी थी। इसकी चमक पहले से कुछ मानित थी। मंसूर, मेरे बच्चे, अंगूठी तो पहनाओ जरवा को, फरजाना ने मुस्कुराते हुए मलक मंसूर से कहा। मैं तो तैयार हूँ खाला, अंगूठी भी तो मेरे हाथ में दे, मलक मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा। जरवा ने जब से आंसू रोके हाथों को गोद में कहीं गुम करती बैठी थी। लब से सख्ती से आपस में पेवस्त थे। इस धुंधलाई हुई नजरों से नादिया को देखकर, जो खुद परेशान सूरत लिए खड़ी थी, वो एक बेबस औरत थी। इसकी किसी ने सुननी थी भला? अजमार, जरवा ने बंद आंखों से इसे पुकारा। वो जो आंखें बंद किए पीर शाह की गोद में सर रखे बैठा था। पीर शाह इस पर पढ़ पढ़ कर फूंक रहे थे, अल्लाह का कलाम फूंक रहे थे। अजमार ने जड़ से आंखें खोली थी। क्या हुआ बच्चे, कहाँ जा रहे हो? इसे जड़ से जूते पहनते देखकर इन्होंने मुलायमत से कहा। शाहजी, मुझे जाना होगा, कोई मेरा अपना तकलीफ में है। अजमार ने बेचैनी से कहा। जाओ बेटा, तुम्हारी ज़रूरत होगी इसे, जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। पीर साहब ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। अजमार इनका हाथ चूमता दौड़ता हुआ कमरे से बाहर भागा था। वो इन्हें अपने साथ फ्लैट में ले आया था। पीर शाह साहब ने भी कह दिया था, जिस घर में इसके प्यारे की जगह नहीं, वहाँ इनके लिए भी कैसे हो सकती है। सबने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अगर एक बार जो फैसला कर लेते थे फिर इससे हटते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। मलक मंसूर इसका हाथ पकड़े अंगूठी डालने ही वाला था जब इसने जड़ से मलक मंसूर के हाथ से इसका हाथ खींचा। मलक मंसूर समेत सबने चौंक कर इसे देखा, जिसने नाक चढ़ाकर जरवा का हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया था। मलक मंसूर भी सोफे से गुस्से से खड़ा हो गया था। जरवा नीम व होंठों से इसे देखती बेयकीनी सी थी। ये क्या तरीका है लड़का किसी का हाथ पकड़ने का? शाइस्ता, वालदा ने तंग कर इससे कहा था। अजमार मुस्कुराया, जबकि जरवा सारी दुनिया को बुलाए बस इसे ही देख रही थी। होंठ हल्के से नीम हुआ थे, सब कहीं पीछे रह गए थे। इसकी नजरों में सिर्फ अजमार का ही रोशन चेहरा था। छोड़ो जरवा का हाथ, मलक मंसूर ने गुस्से से नाक की नथ ने फुलाते हुए कहा। और अगर ना छोड़ूं तो? अजमार ने आईब्रो उचकाते हुए सर्द लहजे में कहा। तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा। ना समझ लड़के, मलक मंसूर ने जेब से पिस्टल निकालकर इस पर तानते हुए दुरुस्तगी से कहा। अजमार मुस्कुराया। क्या अंकल, आपको लगता है मैं पिस्टल से डरता हूँ? अजमार के तंजिया लहजे पर मलक मंसूर ने पिस्टल के ट्रिगर पर दबाव डाला। बाकी सब मुंह पर हाथ रख के परेशान सी सिचुएशन को देख रहे थे। देखो लड़के, बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इदरीस साहब ने इससे गुस्से से वार्न किया। उफ, क्या लगता है आपको मैं आपके कहने पर चला जाऊंगा? हरगिज नहीं। चलो जरवा, अब अपने बाप के घर चलो। इसने जरवा का हाथ पकड़कर चलना चाहा, जब मलक मंसूर सरस से इसके सामने पिस्टल का मुंह अजमार के सीने की तरफ था। आज मैं किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, वरना तुम्हें बताता अजमार अदील पर पिस्टल तानने वाले का क्या अंजाम होता है। अजमार ने सर्द से लहजे में कहा। जरवा को कुछ नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है, बस इसे ही देख रही थी इर्द गिर्द से बिल्कुल गाफिल होकर। छोड़ दो लड़के हमारी लड़की का हाथ, ना तुम लगते क्या हो इसके, किस हाथ से इसका हाथ पकड़े खड़े हो? बताओ जरा मुझे। फरजाना बेगम ने गुस्से से इसका हाथ जरवा का हाथ निकालने की कोशिश करते हुए कहा था। बेहतर होगा दादी जी आप चुप ही रहें तो। और ये हाथ आपको सारी जिंदगी मेरे हाथ में ही नजर आएगा, किसी गैर के हाथ में नहीं। अजमार ने नाक चढ़ाकर सर्द से लहजे में सबको बावर करवाया था। किस हद से कह रहे हो ये सब? इदरीस साहब ने तंग कर इसे पूछा था। बताना जरूरी नहीं समझता मैं आप सबको। अजमार ने कंधे उचकाते हुए सबको तपाया था। तो मरने के लिए तैयार हो जा अजमार साहब, मलक मंसूर ने कहते ही बिना इसे संभलने का मौका दिए 2 फायर कर दिए थे। एक इसके कंधे पर लगा था, दूसरा इसके सीने से नीचे। जरवा ने चौंक कर इसे देखा, जिसकी वाइट शर्ट खून से भर गई थी। वो बिना कोई आवाज निकाले
घुटनों के बल नीचे गिरा था। जरवा का हाथ अभी तक इसके हाथ में था। जरवा के हाथ समेत वो नीचे गिरा था। वो सुर्ख नजरों से जरवा को देख रहा था, जो इसके पास ही नीचे गिरी थी। इसके गिरने की वजह से वो भी अपने कद समेत नीचे गिरी थी। जरवा ने इसकी वाइट शर्ट को देखा, जो खून से सुर्ख हो रही थी। वो रो नहीं रही थी, बस पार सी नजरों से इसकी शर्ट को देख रही थी। बाकी सब भी मुंह पर हाथ रखे परेशानी से इन दोनों को देख रहे थे। मलक मंसूर गुस्से से इसे देखता निकल गया था वहां से, जैसे इसके घर वाले भी चले गए थे। नादिया ने जल्दी से मोबाइल निकालकर जुल्फकार साहब को फोन कर दिया था। अजमार ने बंद होती आंखों से अपने हार्ट को देखा था, जो रो तो नहीं रही थी, बस इसे देखती जा रही थी बिना पलके झपके। इदरीस साहब ने संभलते हुए एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। अजमार की आंखें अभी भी हल्की हल्की खुली हुई थी। वो बिना चीखे कर रहा है, खामोश सा था। आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, ब्लू कपड़ों में मलबूस जरवा की, जिसके वाइट झुमकों पर इसके खून के हल्के हल्के छींटे थे। जर्द चेहरे से वो कोई दीवानी ही लग रही थी। जब अहमद साहब, अदील साहब, जुल्फकार साहब एम्बुलेंस से पहले ही भागते भागते आए थे। वो सब सख्त परेशान थे। वो तो यकीन ही नहीं कर सकते वो यहाँ कैसे आ गया। इसकी हालत को देखते हुए वो सब इसे हाथों में उठाए हुए ले जा चुके थे। जरवा ने अपने हाथ को इसके हाथ से छूटते देखा था। वो हल्का हल्का कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसकी समझ वहां मौजूद किसी को नहीं आई थी। नादिया ने आंखों में आंसू लिए इसे देखा, जो हाथ में लगे इसके खून को देखती अब बिल्कुल खामोश थी। बेटा उठो, रूम में चलो। नादिया ने फरजाना की खोजती नजरों से इसे फौरन दूर ले जाना चाहा। वो इसे उठाकर कमरे में ले जा चुकी थी। फरजाना बेगम की नजरों ने इसका दूर तक पीछा किया था। नादिया इसे जबरदस्ती खींचती हुई ले गई थी। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है इदरीस, दाल में कुछ तो काला है, वरना यह लड़की ऐसा रद्द-ए-अमल ना देती। फरजाना ने इदरीस साहब से कहा, जो परेशान से सर पर हाथ रखे बैठे थे। अब पता नहीं क्या होगा। इदरीस साहब ने बेध्यानी में फरजाना बेगम की बात सुनी थी। इसे इमरजेंसी में ले जाया जा चुका था। खून बहुत ज़ाया हो चुका था। हारून 1 ही घंटे में पहली फ्लाइट से इस्लामाबाद था। तब से इसने अहमद का जीना हराम कर रखा था कि इसे हर कीमत पर मलक मंसूर चाहिए तो चाहिए। डॉक्टर ने इसकी बहुत सीरियस कंडीशन बताई थी। अदील साहब समेत सब का परेशानी से बुरा हाल था। छोटे बड़े सब हॉस्पिटल में बेंचेस पर बैठे हुए थे, इसके लिए दुआ कर रहे थे। मुबीन बेगम को तो आंखें ही नहीं सूख रही थी। अदील साहब ने इसे ग्लास डोर से देखा। वो साकित खामोश सा लेटा इनको साकित कर गया था। वो लाख से डांटते थे, मारते थे, लेकिन था तो वो इनका ही बेटा ना। इन्हें खुद से बहुत ज़्यादा अजीज था। वो इसे देखते हुए बाहर चले गए थे। इनसे इसकी ये हालत देखी अब और नहीं देखी जा रही थी। जरवा बेड पर बैठी, हाथ को आंखों के सामने रखे हुए थी, चुप सी थी, जैसे कुछ कहने, सुनने और बोलने के काबिल ही ना रही हो। इसे कोई अगर देखता तो यही गुमान करता वो इंसान नहीं बल्कि कोई साकत सी मूरत है। रात के 11 बज रहे थे। ठाठा ये आवाज़ इसके कानों में गूंज मौत की गूंजी थी, मौत बनकर गूंजी थी। वो कानों में हाथ रखकर चिल्लाई थी, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ। तुम्हें कैसे? अजमार, वो दोनों वो कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई थी, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं आ रही हूँ। तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? मेरा अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वो बड़बड़ाती हुई नंगे पाँव बाहर की तरफ भागी थी। गेट पर गार्ड नहीं था। वो बारी कुंडी खोलती बाहर की तरफ भागती जा रही थी। इर्द गिर्द गहरे सन्नाटे का राज था। वो मॉल रोड की सड़क पर आ चुकी थी। भागती भागती वो ठोकर खाकर मुंह के बल नीचे गिरी थी। चोट का एहसास इसे खास हुआ ना था। जो जख्म दिल पर लगे हुए थे, इससे बड़ा जख्म कोई हो नहीं सकता था। वो इसी सड़क पर बैठी रोटी से पुकार रही थी। अंधेरा बहुत गहरा था। ब्लैक शीशों वाली चादर सर से उतरकर कंधों पर पड़ी हुई थी। वो हिचकियों से रोटी से पुकार रही थी, लेकिन इसके आंसू पर तड़पने वाला कोई नहीं था। पाँव का नाखून उखड़ चुका था इसका, जिससे हल्का हल्का खून रिस रहा था, लेकिन वो बस हाथ सामने किए जिस पर अजमार का खून अब तक सूख चुका था, वो होंठों पर रख के बिलक रही थी। जब वो चौंकी थी, किसी ने इसके सर पर हाथ रखा था, वैसे ही जैसे अजमार रखता था इसके सर पर। हारून कॉरिडोर में टहलता हुआ सख्त परेशान था। मलक मंसूर का अब तक पता नहीं चल सका था। शायद वो कहीं रूपोश हो गया था। पीर शाह जी भी आए थे हॉस्पिटल इसे देखने। काफी देर इसके सर पर हाथ रखकर वो कुछ पढ़ते रहे थे, फिर बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप जैसे आए थे वैसे ही चले गए थे। हारून ने आंखों में आई नमी उंगली से साफ की थी। फिर इसे देखा, जिसका सुर्ख सफेद चेहरा वैसा ही था जैसे पहले था। ग्रीन आंखें बंद थी आज, जिसमें हमेशा एक सर तासुर रहता था। बाकी सबको इसने जबरदस्ती घर भेज दिया था। यहाँ सिर्फ वो और जिले थे। जिले अभी अपने कैबिन में थी। हारून की सुर्ख आंखें इसके रोने की चुगली खा रही थी। इसका दिल कर रहा था वो इसे अपने मखसूस नजरों से देखे और फिर नाक चढ़ाए, लेकिन हाँ,
वो सिर्फ गहरी सांस ही ले चुका था। जरवा ने ऊपर सर उठाकर देखा जहां वो झुककर इसके सर पर हाथ रख के खड़े थे। बेटा खड़ी हो जाए, शाबाश। इन्होंने नरम से लहजे में इसे पकड़कर खड़ा किया था। जरवा ने इन्हें देखते किसी ट्रांस किसी कैफियत में खड़ी हुई थी। बेटा इस वक्त इस तरह किसी वीरान जगह पर बैठना ठीक नहीं है। आपके लिए आए और चलें, हम आपको छोड़ देते हैं। इन्होंने मिठास गुले लहजे में इससे कहा था, जिसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। रोने से मसला हल नहीं होगा बच्चे, अल्लाह से दुआ करें, वही मुश्किलें टालने वाला है। इन्होंने बहुत प्यार से इसे समझाया। मैं कैसे चुप करूं, वो मेरी आंखों से दूर तकलीफ में है, मैं इसे देखना चाहती हूँ। इसने बढ़ाई हुई आवाज में इनके नूरानी चेहरे को देखा था। बेटा सुबह चली जाइएगा, अभी घर जाएं, वो कल तक बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, इन्होंने यकीन से कहा। कहते हुए इसके मासूम से चेहरे को देखा था। आप सच कह रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा? जरवा ने इनसे बेयकीनी से पूछा था। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा बच्चे। चलें अब मेरे साथ, मुझे रास्ता बताएं, हम आपको आपके घर के करीब छोड़ देंगे। वो कहते हुए चले थे। वो भी आंसू पहुंचती इनके पीछे चली थी। अच्छी बच्चियां रात के वक्त घर से नहीं निकलती, इन्होंने इसके गेट के पास छोड़ते हुए कहा और अल्लाह का विर्द करते हुए चले गए थे। जरवा इन्हें देखती रही, फिर कदम घसीटती हुई अंदर आई। लाउंज बिल्कुल खाली था। वो अपने कमरे में आई, वजू करके मसल्ला बिछाकर बैठ गई। वो कोई दवान तो नहीं मांग रही थी, बस चुप सी बैठी थी ख्यालों में। अजमार था जिसके वाइट शर्ट खून से रंगी इसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। जिले कैबन से चाय लेकर आती हुई ठटक कर रुक गई। सामने बड़ी सी सफेद ब्लैक कढ़ाई वाली चादर ओढ़े वो धीमे धीमे कदमों से चलती हुई आ रही थी। सुता हुआ जड़ चेहरा, सुर्ख सूजी हुई आंखें, वो जिले को बहुत परेशान कर गई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। जिले ने चाय के छोटे गिलास वहीं पास पड़े कैंसोल पर रखे और तेज कदमों से इसकी तरफ आई। जरवा, कुछ हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो इतनी खराब क्यों लग रही है? मुझे बताओ, इस वक्त यहाँ क्या करी? जिले ने इसके कंधे को छूते हुए परेशानी से पूछा। जरवा इसे देखती और जब्त नहीं कर सकी। इसके अगले गले से लगी। वो बेआवाज आंसू से रोती जिले को ठटका गई थी। इसके प्यारे बहन मुश्किल में थी और वो अनजान थी। जिले ने दुख से इसके हिलते वजूद को देखा। जरवा, मेरी तरफ देखो, क्या तुम अजमार को पसंद करती हो? जिले की बात ने जरवा के हिलते वजूद को साकित कर दिया। आप भी? जरवा बस यही कह सकी। जरवा, माना मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा एक आईना है जो सब राज बता देता है। जिले की आवाज़ पर वो फिर किसी मासूम बच्चे की तरह इसके गले से लग गई थी। आप ही, मुझे बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इसकी ज़िंदगी में सिर्फ वो चाहिए। जिले साकित हुई थी इसकी दीवानी देखकर। वो घर में अजमार और जैनी के रिश्ते से आगाह थी। जिले ने गहरा सांस लेते हुए अपनी मासूम बहन को देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराई कि अगर अजमार इसकी बहन की पसंद था तो जरी के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। जिले ने इसके माथे पर होंठ रखते हुए सोचा था। आप मुझे इसका चेहरा दिखा दो ना प्लीज़, आप ही एक बार दिखा दे। जरवा ने इसके हाथ थामते हुए बेबसी से इल्तिजा की। आओ मेरे साथ, जिले ने इसका हाथ थामते हुए कहा। वो इसे आईसीयू रूम में ले आई थी जहां हारून स्टेथोस्कोप से इसका तफसीली चेकअप कर रहा था। जब इसकी नज़र जरवा और जिले पर पड़ी थी। आओ जरी, रुक क्यों गई हो? आ जाओ बच्चे। हारून के शफकत भरे लहजे पर इसके कदम घसीटती हुई इसके पास आई। अजमार को वो बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। इसकी आंखें फर्श पर थी जैसे वो हारून का सामना ना कर पा रही हो। जरवा, अजमार ठीक है, आप 2-3 घंटों में इसे होश आ जाएगा। हारून ने मुस्कुराती आंखों से इसे तसल्ली दी। जरवा ने चौंक कर इसे देखा, फिर चेहरे पर एक अनोखी सी चमक आई थी। वो अनजाने में ही जरी को एक नई जिंदगी दे गया था। आओ जिले, हम चाय पी लें, सर में बहुत दर्द होने लगा है। हारून कहते ही बाहर की तरफ चला गया था। पीछे जिले भी गई कि वो जरी को अकेला छोड़ना चाहते थे। इनके जाने के बाद इसने आहिस्ता से नजरें उठाई और फिर इसके चेहरे पर जम सी गई थी। खूबसूरत पिंक होंठ, बिंचे हुए आंखें बंद किए लेटा वो पसली पर भी पट्टी थी और कंधे पर भी बैंडेज थी। जरवा की आंखों से लगातार बेमोल आंसू गिरकर जमीन पर गुम हो रहे थे। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? ये इंसान क्यों मुझे खुद से ज्यादा प्यारा हो रहा है? जरवा ने ड्रिप लगे इसकी हरी नसों वाले हाथ को आहिस्ता से छूते हुए बड़बड़ाई थी। जरवा का आंसू इसकी उंगली पर गिरा था जब वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। जरवा ने चौंक कर इसके लबों की हरकत देखी थी। जरवा, वो फिर मुस्कुराया था। जरवा ने हैरानी से होंठों पर हाथ रखा। अजमार ने आहिस्ता से ग्रीन आइज खोली। जरवा के चेहरे पर शफक फूट पड़ी थी। इसे आंखें खोले देखकर मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से इसे देखती बेसाख्ता हंसी थी। जरवा, आप रोई हैं? इसने आहिस्ता से उंगली इसके नाखून को
उंगली के नाखून को छूते हुए धीमे से पूछा, मैं रोऊंगी। जरवा ने हिचकी से रोते हुए जिद्दी लहजे में कहा। अजमार का कटावदार होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी थी। मेरी जिंदगी में कभी मत रोना जरवा, मुझे कोई चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तुम्हारे आंसू गिरने से मुझे तकलीफ होती है। फिर क्यों बेड पर पड़े हो? अगर आप चाहते हैं मैं ना रोऊं तो आप फिर ठीक हो जाएं। मैं नहीं देख सकती आपको बेड पर। जरवा ने उंगलियों से आंसू साफ करते हुए भराए हुए लहजे में कहा। बस तुम्हारे कहने की देर थी, वो आहिस्ता से बोला। तुम्हारी लौंग कहाँ है जरवा? अजमार की नजर इसकी खाली नाक पर पड़ी थी, इसीलिए इसने परेशानी से पूछा। पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। जरवा ने नाक पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा। उफ, जरवा अपने से जुड़ी चीजों का ख्याल रखते हैं माय हार्ट। जरवा की आंखें चमकी थी इसके नाम से, अपना नाम बार बार सुनकर। तब ये हारून और जिले कमरे में आए थे। वाह वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मेरे भाई। हारून ने इसे आंखें खोले देखकर खुशी से भरपूर लहजे में कहा। अजमार ने अपने भाई को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। आप ही मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। जरवा बिना किसी से नजरें मिलाए बैग कंधे पर रखती तेज कदमों से चलती बाहर चली गई। अजमार के चेहरे पर फिर से सर तासरात सज गए थे। हारून ने बारीक बीनी से इसके सर तासरात देखे, मतलब इसके भाई के चेहरे पर सिर्फ यही लड़की मुस्कुराहट ला सकती थी। हारून ने इसके माथे पर होंठ रखते सोचा। जिले हर बार हैरान होती हारून को देखकर, हर रिश्ते को निभाना कितने अच्छे से आता था। जरवा अभी गार्डन में गई थी जब वो बेसाख्ता रुकी थी। सामने ही वो सफेद शफाफ सूट पहने, कंधों पर वाइट ही चादर ओढ़े, हाथों में तस्बीह पकड़े वो सामने से चलते आ रहे थे। इनके पीछे 7-8 आदमी थे जो हाथ बांधे इनके पीछे एहतराम से चल रहे थे। जरवा ने इतना पुरनूर चेहरा पहली बार किसी इंसान को देखा था। वो रुके थे इसके पास, फिर इन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़कर इसके चेहरे पर फूंका था। आप कौन हैं? जरवा ने इन्हें देखते हुए धीमे से कहा। अल्लाह का आम सा बंदा हूँ मेरे बच्चे, ख्याल रखा करो बच्चे अपना और इसका। वो कहकर रुके नहीं थे। नमाज में दिल लगाओ बच्चे, कि यही एक जरिया है सुकून का। इन्होंने नजरें तस्बीह पर जमाते ही इसे हिदायत की। लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ फिर भी सुकून नहीं मिलता। जरवा ने मुंह बसोड़ कर कहा। बच्चे जब ध्यान से नमाज पढ़ोगी तो सुकून पाओगी। जाओ बच्चे घर जाओ, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो इसके सर पर हाथ रखकर कहते हुए अंदर की तरफ चले गए थे, जबकि वो सब आदमी वहीं पर हाथ बांधे खड़े हो गए थे। जरवा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी, चेहरे पर आंसुओं की वाजिया निशान थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जरी किसी और को इस हद तक चाह सकती है। जिले ने चाय के घूंट लेते हुए हारून से कहा, जो गोद में अजमार की फाइल रखे जिले को देख रहा था। वो दोनों गार्डन में मौजूद थे, बाकी सब घर वाले अजमार के पास प्राइवेट रूम में मौजूद थे। जिले, मोहब्बत और इश्क में बहुत फ़र्क होता है, तुम्हें पता है। मैं इश्क वगैरह पर यकीन नहीं रखता था पहले, लेकिन जब मैंने जरी और अजमार को देखा तो मुझे खुद ब खुद इश्क और मोहब्बत पर यकीन आने लगा। हारून ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। जिले ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वैसे कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई? जिले ने आईब्रो उचकाते हुए इसे कहा। लगता है हो जाएगी। हारून ने इसके पोनी टेल में बंधे हुए बालों को संजीदगी से देखा था। जिले ने आंखें सुखेड़ी। किससे? इसने सामने से आती राबील को देखकर संजीदगी से पूछा। बस एक है प्यारी सी नटखट सी लड़की। हारून ने संजीदगी और शरारत से कहा। डॉक्टर हारून, हमें मिसेस मरियम का केस डिस्कस करना था। डॉक्टर रबील ने मोबाइल पर कुछ टाइप करते हुए हारून से कहा। हाँ मैं भूल गया था, चलो जिले ब्रेक में मिलते हैं। हारून ने इसके सर पर हाथ रखकर कहते हुए चला गया था। पीछे पीछे राबील भी पॉकेट में सेल घुसाती इससे बातें करती हुई चली गई। डॉक्टर राबील, तुम्हारी तो मैं किसी दिन छुट्टी चटनी बनाकर चील कौवों को खिलाऊंगी, शर्म नहीं आती? शादीशुदा मर्द पर नजर रखते हुए जिले मुठियां भींचकर गुस्से से ऊंचा ऊंचा बड़बड़ाई थी। बेटा अब तुम तो अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, राबील की बच्ची। जिले ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा था। हारून सीने पर हाथ बांधकर मुस्कुराया। वो अपना स्टेथोस्कोप लेने आया था जो बेंच पर ही भूल गया था। वो जिले के नादर ख्यालात इसे कहका लगाने पर मजबूर कर गए थे जो मुश्किल से कंट्रोल किया था। हारून मुस्कुराती नजरों से इसे देखे गया। अजमार को 2 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। इन 2 दिनों में सब स्टाफ की नाक में दम करके रखा हुआ था इसने। वो मेडिसिन तो लेना दूर की किसी नर्स और डॉक्टर को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करता था, सिवाय जिले और हारून के। वो सख्त तंग था यहाँ के माहौल से, लेकिन हारून था कि इसे ज़बरदस्ती इसे हॉस्पिटल में रोके हुए था। शाम के 5 बजे का टाइम था। जिले और हारून ऑपरेशन थिएटर में थे। इसने नाक चढ़ाकर हॉस्पिटल की साफ सुथरे कमरे को देखा, फिर बेजार सा मुंह बनाते हुए बेड से खड़ा होगा।
धीमे कदमों से चलता हुआ बाहर आ गया था। सारे स्टाफ ने इसे हैरानी से देखा। वो बिना किसी के देखे नाक चढ़ाए सामने देखता हुआ बाहर निकल गया था। वो रोड पर आ गया। हॉस्पिटल के मखसूस लिबास में, पाँव में कैंची चप्पल पहने मगरूर चाल चलता। वो कई लोगों की तवज्जो का मरकज था। ओपन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था वो। सोच का मरकज सिर्फ मलक मंसूर था। वहां से उठकर वो सीधा जरवा के घर आया था। मम्मा, आज खाना मैं बनाऊं? रात का जरी ने खाना बनाती हुई नादिया के कंधे पर सर रखते हुए लाड से कहा। अच्छा, मेरी बेटी ने आज तक कौन सी डिश बनाई है जो खाना बनाएगी? नादिया ने इसकी तरफ पलट कर प्यार से पूछा। मम्मा, अगर आपकी बेटी ने खाना नहीं बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बनाना नहीं आता। जरी ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। अच्छा, तो मेरी सुक्कड़ बेटी क्या बनाएगी आज? मम्मा, मैं शामी कबाब बनाऊंगी। एक यही चीज़ थी जो अजमार शौक से खाता था। वो बस इसी से शुरुआत करना चाहती थी। आप बाहर जाएं, मैं बनाऊंगी। अच्छा तो तुम बनाओ। मैं तुम्हारे चाचू की तरफ इदरीस के साथ चली जाती हूँ। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। इदरीस चलने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा पहले खाना बना लूँ फिर चलेंगे, लेकिन अब तुम बना रही हो तो हम अभी चले जाएंगे। नादिया ने तफसील से इसे बताते हुए किचन से बाहर आ गई। जरवा ने फ्रीजर से गोश्त का पैकेट निकाल कर इसे धोया। जरवा अपने काम में बिजी थी जब बाहर वाले की दरवाजे की बेल बजी। इस टाइम कौन आ गया? जरवा खुद से बड़बड़ाती हुई लाउंज में आई। इसने डोर खोला था जहां वो स्पाट तासरा से खड़ा इसे चौंका गया था। आप यहाँ? जरवा ने इसे देखते हुए हैरानी से पूछा। हम, वो कहता हुआ अंदर घुस आया था। जरवा ने हैरत से इसे देखा। वो हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में था। लापरवाही से चलता हुआ लाउंज में बैठ चुका था। आप क्यों आ गए हैं? दादी घर पर हैं। जरवा ने दादी के कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए परेशानी से कहा। आई डोंट केयर माई हार्ट, सबसे मिलने ही तो आया हूँ। स्पाट से अंदाज में कहता वो इसे चौंका गया था। क्यों मिलने आए? जरवा ने होंठ काटते हुए उलझते हुए पूछा। यूं ही इन्हें वार्न करने को के खबरदार, जो मेरी बीवी से किसी ने काम करवाया तो। अजमार के चेहरे के तासरात संजीदा थे। वो इसके हाथों में मिसाला लगा देखता कह रहा था। जरवा पहले तो हैरान हुई इसकी नज़रों के ताक़ुब में, जो इसके हाथों को देख रहा। जरवा मुस्कुराई। ये काम मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे। जरवा ने हल्की सी मुस्कान से इसके चेहरे को देखते हुए कहा। अरे लड़की, तुम्हें तो गोली लगी थी ना, यहाँ कैसे आ गए? हाँ, बस दादी, आपकी दुआ से ठीक हो गया हूँ। अरे लड़के, तुम्हें तो गोली लगी थी ना, यहाँ कैसे आ गए? फरजाना बेगम ने नाक पर उंगली रखकर हैरानी से इसे पूछा। बस दादी, आपकी दुआ से ठीक हो गया हूँ। आप बस इस तरह मेरे लिए दुआ करती रहा करें। अजमान ने सब नज़रों से इसे देखते हुए कहा। फरजाना ने मुंह बनाकर सर झटका। तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? नादिया तो घर पर नहीं है। फरजाना ने सोफे पर बैठते हुए तंग कर इसे कहा था। तो डियर दादी, इनसे मिलने नहीं आया मैं, वो कहकर चुप हुआ। फिर जरी के परेशान चेहरे को देखकर पहली बार मुस्कुराया था, जिस पर जरवा 100 बार कुर्बान हुई थी इसकी हल्की सी मुस्कान पर। लेकिन दूसरे ही पल वो साकित हुई थी इसकी अगली बात पर। डियर दादी, मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, ना कि किसी और से। इसके मुस्कुराते लब पर दादी समेत इदरीस साहब भी साकत हुए थे। वो दोनों रास्ते से ही कर लौट आए थे, क्योंकि इदरीस साहब वॉलेट घर पर भूल गए थे, वही लेने आए थे। जरवा के चेहरे पर तारीख सा साया लहराया था। दादी की खश्मगीन निगाहें नज़रों पर जब वो हल्की सी मुस्कान से नाक चढ़ाते सबको लापरवाही से देखता रहा। ये सब क्या बकवास है? यह कौन सी बीवी है तुम्हारी जो तुम इससे मिलने आए हो? इदरीस साहब ने गुस्से से इसके चेहरे को देखते दुरुस्तगी से कहा। जरवा और नादिया के चेहरे पर सरासमगी छा गई थी अजमार के मुस्कुराते होंठ देखकर। तो अभी मिलवा देता हूँ। मीट माई वाइफ जरवा अदील। अजमार ने इस बार संजीदगी से इन्हें जवाब देकर जरी को देखा, जो मिसाला लगे हाथ होंठों पर रख चुकी थी। बकवास बंद करो, मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, समझे तुम? सो ये झूठ बोलना बंद करो। इदरीस साहब के पुरयकीन लहजे पर जरवा के आंसू गिरने लगे थे, जबकि फरजाना बेगम अपना सा मुंह खोले जरी को सदमे से देख रही थी। नादिया ने गहरा सांस लेकर अजमार को देखा जो अब कह रहा था। आपकी बेटी में कोई शक नहीं कि वो दुनिया की बेस्ट बेटी है, लेकिन मर्जी इस खुदा की चलती है, इंसान की नहीं। हमारा निकाह हो चुका है, सो मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, दैट्स इट। इसने संजीदगी से कहा। जरवा को देखा जो रोती हुई इसे देख रही थी। आप क्यों रो रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर? रोना तो आपको रुलाने वालों को होगा। अजमार के सर्द लहजे पर फरजाना ने दिल मिलाकर इसे देखा, जो लग ही नहीं रहा था कि वो 2 दिन पहले इसे 2 गोलियां लगी थी। नडर, सर्द और सद नजरों से सबको देखता इनको ठटका रहा था। हाय हाय नादिया, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? अरे हमारे खानदान की लड़कियां तो पराए मर्दों से बात तक नहीं करती, और तुम्हारी आम सी शक्ल की लड़की तो देखो निकाह कर लिया। अल्लाह अल्लाह, ये क्या ज़माना आ गया है? फरजाना ने अपने गाल पीटते हुए गुस्से से कहा। उफ, कितने ड्रामे करती हैं दादी आप। अजमार ने नाक चढ़ाते हुए कहा। और खबरदार जो मेरी बीवी पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो तो।
میں ان کی کوئی غلطی نہیں، یہ نکاح میں نے زبردستی ان سے گن پوائنٹ پر کیا تھا۔ ازمار کی بے لچک آواز ادریس صاحب سمیت سب کو ساکت کر گئی۔ ذروہ نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا، جو ادریس صاحب فرزانہ بیگم کو سرد نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نادیہ نے آنسو صاف کیے کہ یہ انسان ان کی بیٹی کے لیے بیسٹ تھا۔ فرزانہ نے منہ پر ہاتھ رکھا اور سینہ کو بھی کرنا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکا ہمارے گھر کی بچی سے گن پوائنٹ پر نکاح کر گیا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلنا ہے۔ ہائی ادریس، فون کر اس کے گھر والوں کو۔ فرزانہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وویلا شروع کر دیا۔ ادریس صاحب کو ہدایت دی۔ ادریس صاحب نے اس بات میں ساری لاتے اس کے باپ کا نمبر ملاتا تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ ازمان نے کندھے اچکاتے جیسے وہ اس سب کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ اور تو میسنی ہمیں بتا نہیں سکتی تھی؟ خوب دھوکہ دیا تو نے اپنے والدین کو، فرزانہ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ امی جی پلیز بس کر دیں میری بیٹی کو کوسنا، اب میں ایک لفظ نہیں سنوں گی اپنی بیٹی کے لیے۔ نادیہ ازمان سے پہلے بول پڑی تھی۔ زری نے روتے ہوئے نادیہ کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ ازمان نے سرد نظروں سے فرزانہ کو دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی فرزانہ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب اس کبیر شاہ صاحب کو پسند نہیں تھا، ورنہ اب تک وہ زمین کے اندر گاڑ دیتا ذروہ کو برا بھلا کہنے والوں کو۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ ازمان نے اسے دیکھا جو شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھ کر منہ پیچھے موڑ چکی تھی۔ وہ سخت پریشان تھی آنے والی درپیش سچویشن کو لے کر۔ ازمان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی ذروہ کے خود کو اگنور کیے جانے پر۔ اف، یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر رابیل نے چائے کا کپ نیچے پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ پردے کے پیچھے چھپی ضلع نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پیو نا مرچی والی چائے رابیل کی بچی، ضلع نے منہ بناتے ہوئے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ اف، منہ جل گیا میرا، اف۔ رابیل نے پانی کے گلاس پر گلاس پیتے ہوئے ہانپ کر کہا۔ کیا ہوا ڈاکٹر رابیل؟ ضلع نے اسے شو کیا جیسے وہ ابھی کمرے میں آئی ہو۔ اس کینٹین والے بچے نے شوگر کی بجائے چائے میں سرخ مرچ ڈال دی۔ رابیل نے منہ سے گہری سانس نکالتے ہوئے ضلع سے کہا۔ ارے یہ کیا؟ تم فکر مت کرو، میں پوچھتی ہوں اس سے کہ بھلا ڈاکٹر رابیل سے تمہاری کیا دشمنی ہے جو تم نے اس کی چائے مرچوں والی بنا دی؟ ضلع نے سر ہلاتے ہوئے مصنوعی افسوس سے کہا۔ تم ریلیکس کرو، میں پوچھتی ہوں اس سے، اور تمہارے لیے میٹھی شہد والی چائے بنوا کر بھیجتی ہوں۔ ڈونٹ وری، ضلع منہ بنا کر کہتی ہوئی پلٹ کر ہنسی، لیکن باہر آ کر اسے رکنا پڑا کیونکہ سامنے یہ ہارون سینے پر ہاتھ باندھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر رابیل سے مجھے کچھ کام تھا، اسی لیے ان سے وہ کام کہنے آئی تھی، لیکن وہ تو سو رہی ہیں، تھک گئی ہوں گی، تو میں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ تم بھی مت کرنا، مجھے بتا دو جو کام ہے تمہیں، میں اسے بتا دوں گی بعد میں۔ اسے کسی کو نیند سے جگانا اچھی ہیبٹ نہیں ہے۔ ضلع نے اسے رابیل کے کمرے میں جانے سے روکنے کے لیے اچھی خاصی تقریر کر دی تھی۔ او اچھا، ویسے ڈاکٹرز ضلع کب سے لوگوں کا اتنا خیال رکھنے لگی؟ ہارون نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بھویں اچکا کر پوچھا۔ کیوں، میں کیا انسان نہیں ہوں؟ مجھ میں بھی ایک حساس دل موجود ہے جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، ضلع نے ناک سکوڑ کر کہا۔ ہارون کا دل دھڑکا تھا اس کے ناک سکوڑنے پر۔ ضلع، تم تو میرے لیے شہد والی چائے لینے گئی تھی نا، لیکن تم تو ابھی بھی یہی ہو؟ رابیل نے کمرے سے باہر آتے سرخ ہوتے ہونٹوں سے اس سے پوچھا تھا۔ ضلع بوکھلا کر اس کی طرف مڑی۔ ضلع مصنوعی سا مسکرائی، پھر ہارون کو دیکھا جو اسے سنجیدگی سے دیکھتا اپنی مونچھیں سنوار رہا تھا۔ ضلع کا دل جل کر کوئلہ ہوا، لیکن ضلع تو کچھ ہاں میں کہہ رہی تھی میں رابیل کے لیے شاید جیسی چائے لانے جا رہی ہوں، لیکن ہارون نے مجھے یہیں روک کر کچھ ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ میں جا ہی رہی ہوں، ضلع تیز بولتی دونوں کو حیران کر گئی تھی۔ چلیں ڈاکٹر ہارون، ضلع نے ہارون سے کہا، لیکن چائے تو تم لینے جا رہی ہو نا؟ ہارون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ رابیل نے ہاتھوں سے ہوا لیتے ہوئے اسے پوچھا۔ وہ ہارون کو بھی چائے پینی تھی۔ ضلع نے ہارون کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، ساتھ ساتھ اسے بھی کھینچ رہی جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں البتہ چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں میرے ہی پیچھے پڑے ہو؟ اس کالج میں اتنی لڑکیاں ہیں، جاؤ کسی اور کا پلہ پکڑو، لیکن برائے مہربانی میرا پیچھے چھوڑ دو، مجھے یہ تمہاری لنگور جیسی شکل سخت بری لگتی ہے۔ سیریسلی، نوال نے کب سے اپنا پیچھا کرتے معیز سے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں لڑکیاں تو بہت ہیں، لیکن تمہارے والی میری لنگور سی شکل کے ساتھ سوٹ نہیں کریں گی مائی لو۔ میرے ساتھ تو کوئی لنگور سی شکل والی ہی سوٹ کرتی ہے، معیز نے تھوڑی کو سہلاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اف، کیا تم نے مجھے لنگور سی شکل کا کہا؟ اپنا منہ
देखो सोई हुई शक्ल वाले, मैं तो खूबसूरत तरीन हूँ, तुम क्या हो छुछुंदर जैसी कहीं शक्ल। शर्म नहीं आती किसी लड़की को लंगूर वाला बोलते हुए। नवान ने सदमे से निकलते हुए सख्त तय से कहा था। तो तुमने भी तो मुझे लंगूर वाली शक्ल वाला बोला था। चुप रहूंगा? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें एक की चार सुनाऊंगा। मोहब्बत की है, कोई जान का सौदा थोड़ी ना किया है छुछुंदर कहीं की। मोइज ने कमर पर हाथ रखकर हिसाब बराबर किया। उफ, तुम पागल हो बेदीद इंसान, नवाल ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा। हाँ, और अनकरीब बहुत जल्द तुम्हें पूरा पागल कर दूंगा। वैसे आधी पागल तो तुम पहले ही हो। अंगूठे से नाक को छूते हुए रिलैक्स अंदाज में इसे तपाने की इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, नवाल तंग कर कहती हुई जल्दी से आगे बढ़ गई। तुमसे बात करने में कौन सा फायदा है? वो तो मैं तुम पर तरस खा कर लेता हूँ बात। इसने पीछे पीछे आते हुए मुंह पर बनाकर कहा, जिस पर नवाल सब्र के घूंट भरकर रह गई थी। इस इंसान से बातों में कोई नहीं जीत सकता था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? निकाह का? अदील साहब के सर्द आवाज पर वो इनकी तरफ पलटा था, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। सॉरी डैड, वो निकाह के पेपर्स तो मुझसे गुम हो गए हैं। अजमार की बात पर सब ने हैरत से इसे देखा। ये क्या पागलपन है? चलो घर, अब वहां जाकर ही बात होगी। अदील साहब ने गुस्सा सब्त करते हुए कहा था। नो डैड, एक कदम भी यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक मेरी बीवी मेरे साथ नहीं जाएगी। इसकी बेलचक और अटल लहजे पर वहां सबको हैरत के साथ साथ गुस्से से भी दो चार हुए थे। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी नहीं भेजूंगा। क्या कर लोगी तुम? इदरीस साहब ने इंतहाई गुस्से से कहा। कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यह तो तय है, अपनी बीवी को अब एक मिनट भी अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगा। साथ लेकर जाऊंगा, डेट्स इट। इसने इदरीस साहब के करीब आते हुए डीठपन से कहा। इसके जिद्दी लहजे पर सबको सांप सूंघ गया था। अजमार बेटा, घर चलो, वहां चलकर बात करते हैं। अहमद साहब ने इसे बाजू से थामते हुए कहा। चाचू, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, जरवा को साथ लेकर जाऊंगा। ये तो तय है, वरना एक इंच यहाँ से नहीं हिलूंगा। इसने जरवा को सब नजरों से देखते हुए कहा। देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाते यहाँ से। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इदरीस साहब ने मोबाइल जेब से निकालते हुए धमकी दी कि शायद वो पुलिस से डर कर चला जाए। सुसर साहब, जिसे चाहे बुला लें, लेकिन अजमान दिल को दुनिया की कोई ताकत यहाँ से नहीं हटा सकती जब तक वो अपनी बीवी को साथ ना ले जाए। चलो जरवा, मैं नहीं चाहता तुम रो या तुम्हें कोई बुरा भला कहे। इसने गुस्से से जरवा का हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते सर्द लहजे में कहा। जरवा ने खामोश नजरों से इसे देखा। नहीं जरवा, और अब दूर नहीं रख सकता मैं तुम्हें खुद से। अब अगर हम दूर हुए तो शायद ही कभी मिल सकेंगे। मेरी बात मानो जरवा, मेरे साथ चलो। इसके धीमे लहजे पर जरवा की आंखें बरसात की तरह बरसी थी। ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे तुम्हारे साथ, जरवा ने हिचकी लेते हुए धीमे से कहा। जरवा, मेरे साथ, मेरी तरफ देखो, और बस चलो यहाँ से। माई हार्ट। इसकी डार्क ग्रीन आंखों में जरवा के लिए बेइंतहा इश्क था, जो वहां खड़े लोगों को नजर आ रहा था। फरजाना तो थोड़ी पर हाथ रखे सबको बोलता देखती अफसोस से सर हिला रही थी। भला वो कहाँ यकीन करती कि एक कम शक्ल लड़की को इतना खूबसूरत शोहर मिल गया। वो तो बेयकीन सी थी, लेकिन वो क्या जाने खुदा की कुदरत, जिसने जोड़े तो आसमानों पर बनाए थे, इसमें किसी इंसान का बस नहीं चलता था। खुदाई फैसलों में किसी इंसान की मर्जी नहीं चल सकती थी। मैं जाऊंगी अजमार के साथ। हमारा निकाह आज से 2 माह पहले हुआ था, और वो भी एक हादसाती तौर पर, जिस पर कोई इंसान बिलीव नहीं कर सकता, लेकिन ये एक हकीकत है। शायद हमारा मिलना ऐसे ही लिखा था। जरवा ने नरम धीमी आवाज पर। सब ने चौंक कर इसे देखा। जो अब कह रही थी, आज से 2 माह पहले हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। इसने धीमे से बोलते हुए सबको सच्चाई से रोशनास करवाया। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई अजमार पर इल्जाम लगाए, इसलिए इसने सब कुछ बता दिया जो इनके साथ इस रात हुआ था। चाचू, जरवा ठीक कह रही है, यही सच है। अजमार बता चुका है मुझे। हारून की आवाज़ पर सब ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो ब्लैक पैंट पर डार्क ब्राउन शर्ट पहने खड़ा था। इसने जब सुना कि अजमार हॉस्पिटल से चला गया, वो भागता हुआ यही आया था। हो सकता है वो जरवा की तरफ आया हो, लेकिन सच में वो इसे वहीं मिला था। इन सबको वहां देखकर सारा मामला समझ गया था। जब तुम्हें पता था तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अहमद साहब ने गुस्से से अपने बेटे से बात प्रेस की। बस मैं सही वक्त की तलाश में था, हारून ने जरवा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जरवा भागती भाई कहती इसके कंधे से लग गई थी। उफ, अजमार को देखकर हारून ने सर पीट लिया था, जिसकी डार्क ग्रीन आंखें लाइट ग्रीन हो चुकी थी। इसमें सटपन भी वाज़ा था। जरवा को हारून के कंधे से लगे देखकर, हालांकि वो जानता था हारून और जरवा एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, लेकिन वो क्या करता अपनी पोजेसिव नेचर का। वो तो इस
हवा का भी दुश्मन था। जरवा को हल्का सा छू कर गुजरती थी। देखिए अंकल इदरीस, इनका निकाह हो चुका है, हमें जरवा को साथ ले जाने से आप नहीं रोक सकते। ले जाओ, लेकिन ये लड़की अब इस घर में मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए। इदरीस साहब सपाट से लहजे में कहते अंदर जा चुके थे। पीछे पीछे फरजाना बेगम मुंह बनाते सबको घूरती हुई अपने बेटे के कमरे में जा चुकी थी। जरवा ने परेशानी से नादिया को देखा। मम्मा, बाबा क्या कह रहे हैं? जरवा ने परेशानी से नादिया से पूछा था। बेटा जाओ, कुछ दिन बाद इनका गुस्सा कम हो जाएगा तो मना लेना इन्हें। वैसे भी मैं अब इस मंसूर से बहुत डर गई हूँ, पता नहीं क्या करते। जाओ, चली जाओ। नादिया ने इसकी उलझी बिखरी लिटे संवारते हुए इसे जाने की इजाज़त दी। जरवा इनके सीने से लगती अपना कंट्रोल खो चुकी, जबकि इसे रोते देखकर अजमान ने सबसे मुठियाँ भींची थी। जी तो जनाब, ये तो हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको किस्त पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी और वक्त से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।